اور یہاں پر اہم خبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے لیے تاریخی دن، پاکستان کا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 آج خلا میں بھیجا جائے گا۔ سیٹلائٹ چین کے شیچونگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے مدار بھیجا جائے گا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق اس سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے طول و عرض میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکیں گی۔ جی ہاں، آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم خبر ہے، پاکستان کے لیے ایک اور تاریخی ساز دن بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 آج خلا میں بھیجا جائے گا۔ آئمہ خان ہمارے ساتھ تفصیلات کے لیے موجود ہیں۔ آئمہ بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل، دیکھیں پاکستان کے لیے آج ایک اہم اور تاریخی دن ہے۔ پاکستان کا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 جو ہے وہ آج خلا میں بھیجا جائے گا۔ سیٹلائٹ چین سے جو ہے وہ چین کے لانچ سینٹر سے جو ہے وہ مدار میں بھیجا جائے گا۔ 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں گی۔ سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر مدار میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ کو زمین کے مدار تک پہنچنے میں 3 سے 4 روز جو ہے وہ لگ سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ اس کے علاوہ جو ہے وہ ای کامرس کے علاوہ معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گا۔ جی آئمہ بتائیے گا کہ MM-1 جو ہے سیٹلائٹ چین کے شیچونگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا جائے گا۔ پاکستان میں اس کو براہ راست کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں اسپارکو میں جو ہے وہ اس کی لائیو کوریج دکھائی جائے گی۔ لائیو مناظر جو ہے وہ اسپارکو کراچی میں بھی جو ہے وہ اس کے آج شام 4 بجے جو ہے وہ لائیو مناظر دکھائے جائیں گے، اور وہ یہ چین سے جو ہے وہ براہ راست ہوگا، جس کے لائیو مناظر جو ہے وہ اسپارکو سینٹرز میں جو ہے وہ دکھائے بھی جائیں گے۔ جی ہمیں بتائیے گا کہ براڈ کاسٹنگ اور سیلولر فون سروس، اس کے علاوہ براڈ بینڈ سروس کی جو ہے کمیونیکیشن کو اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ابھی بتائیے گا کہ اس کو کب لانچ کریں گے، پاکستان میں کس سال، اور سروسز کب سے ملیں گی؟ جی ابھی آج جو ہے وہ اس سیٹلائٹ کو خلا میں جو ہے وہ بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پہنچنے میں بھی جو ہے وہ کچھ دن وہاں پہ لگیں گے۔ خلا میں پہنچنے کے میں بھی اس کو کافی دن لگیں گے۔ سیٹلائٹ زمین سے جو ہے وہ 36,000 کلومیٹر کی اونچائی سے جو ہے وہ مدار میں داخل کیا جائے گا، اور پھر اس پارکوں کے ترجمان اور دیگر جو لوگ ہیں اس سیٹلائٹ کو تیار کرنے والے، وہ خاصے پر امید نظر آ رہے ہیں کہ اس سیٹلائٹ کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ مواصلاتی جو کام ہے، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ فراہم کی جا سکے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا آئمہ خان۔ اب یہاں بات کریں گے اورنگی ٹاؤن فاروق کالونی میں برساتی نالوں کی خستہ حالی کے باعث عوام کا جان و مال داؤ پر لگ چکا ہے۔ لنک روڈ اور گلیوں سے گزرنے والے نالے حفاظتی چھت سے محروم ہیں۔ مزید بتائیں گے رضوان احمد۔ UC4 ہے، اورنگی ٹاؤن گنجان آباد یہ علاقہ ہے، اور سیکٹر 11A لگتا ہے۔ یہاں پر جو برساتی نالے ہیں وہ سیوریج کے نالے بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ سے کھلے ہوئے۔ شہری ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ۔ السلام علیکم سر، بات یہ ہے کہ یہاں یہ دیکھیں آپ، سارے پورے نالے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پورے نالے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ آنے جانے والوں کو بھی پریشانی ہے۔ یہ گھر سے باہر نکلتے بچے گرتے ہیں، اس میں سارے بچے گرتے ہیں، صحیح ہے۔ ابھی ٹریفک چلتی ہے تو یہ بائکیں گرتی ہیں، ٹھیلے گرتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے ادھر، تو اندھیرے کی باعث یہ سارا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کب سے یہ صورتحال، نالے کب سے کھلے؟ تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں، تو سنوائی بھی نہیں ہوتی، حالانکہ بولتے ہیں بہت دفعہ، ایئرپورٹ بھی اپلیکیشنیں وغیرہ بھی دی ہم لوگ۔ یہ تو بتا دیا آپ نے کہ عام دنوں میں لوگ گرتے ہیں، بارشوں میں کیا صورتحال؟ بارش میں یہ سارے گھر سے جتنا بھی ہے نا پانی، یہ سب گھروں میں جاتا ہے پانی، اور یہ ادھر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، کچرا بھی یہیں ڈالا جاتا ہے سارا، سمجھیں گے۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ کھلے ہوئے نالے عام دنوں میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ عذاب بنے ہوئے ہیں، جان و مال جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اور بارشوں میں اس مرتبہ کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ مونسون جو ہے 100% زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہوگا۔ تو بارشوں کے حوالے سے یہاں کے شہری پریشان ہیں کہ کیا ہوگا اگر یہ کھلے نالے اوور فلو ہوئے، کیونکہ لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں، ان کا مال و اسباب ڈوب جاتا ہے۔ فوری طور پر کہا جا رہا ہے کہ فاروق کالونی کے جو یہ نالے ہیں ان کی نہ صرف صفائی کی جائے، کچرا اس میں سے نکالا جائے، بلکہ ان کو کورڈ کیا جائے۔ جی اور دوسری جانب واٹر کارپوریشن کی غفلت لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونے کا سبب بننے لگی ہے۔ K3 کی لائن کی لیکیج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، یومیہ لاکھوں گیلن پانی ندی میں گر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں پانی کے ٹینکر بھرنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ تفصیلات احسن عباسی سے جانتے ہیں۔ جی احسن بتائیے گا ہمیں۔
जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में मौजूद हूँ। K3 की बड़ी पानी की सप्लाई लाइन जो है वो यहाँ से गुजर रही है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक अगर आपको दिखाएं तो सूरत हाल ये है कि ओवरफ्लो का पानी जो है वो लाखों गैलन यौमिया यहाँ से जो है वो निकल रहा होता है, जो कि आबादी के बच्चे और लोग आके यहाँ पे नहा रहे होते हैं गर्मी के इस मौसम में। लेकिन ये लाखों गैलन पानी जो है वाटर कॉरपोरेशन का, वो तमाम पानी निकल के जो है वो नाले में मिल रहा होता है। यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो चिंचियाँ भरी जाती हैं पानी की, और वो पानी जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। रात को जो है वो यहाँ पे टैंकर लगाए जाते हैं, टैंकर की मदद से जो है ये पानी लिया जाता है, और उसके बाद यही पानी जो है वो ज़मीन से उठाकर घरों पे सप्लाई किया जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि वाटर कॉरपोरेशन को जो है वो कई MGD पानी की किल्लत का सामना है। शहर में पानी की खपत को पूरा नहीं कर पा रही है वाटर कॉरपोरेशन, लेकिन देखा ये जा रहा है कि शहर के बेशुमार मकामात पे लाखों गैलन पानी जो है वो ज़ाया होकर नदी में मिल रहा है। अगर वो तमाम पानी जो है वो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से सेव किया जाए तो किसी हद तक उन इलाकों को पानी जो है वो फराम किया जा सकेगा जहाँ की आवाम जो है वो पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा जो बिल्डर्स अपना मलबा सड़कों के साथ डंप करेगा इसे उठाने की रकम इलाके का SSP अदा करेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी है, जिसमें सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। आजिज़ जमाली हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा सिंध काबीना के इजलास की तफसीलात। जी देखिए, यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में सिंध काबीना का इजलास अभी तक जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। सूबाई काबीना के अरकान और मुतल्लिका सरकारी अफसरान इस इजलास में शरीक हैं। कोई 41 नुकाती एजेंडा है, जिससे लग रहा है कि ये इजलास बड़ा तवील चलेगा। अब तक के जो फ़ैसले हुए हैं, जो हमें मालूमात मिली है, उसके मुताबिक जो ई-व्हीकल टैक्स है, ई-व्हीकल टैक्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उसके टैक्स के वसूली में आवाम को कुछ रियायत दी गई है। ये नॉन कमर्शियल गाड़ियों पे रियायत होगी 1000 से लेकर 500 रुपये, और फिर जो मोटरसाइकिल है उस पर 200 रुपये, यानी टैक्स में छूट दी गई है। सूबाई वज़ीर एक्साइज़ ने ये बात काबीना के सामने रखी थी। एक दूसरा अहम फ़ैसला ये हुआ है कि एस बॉस सिस्टम यानी सरकारी महकमों में जो ई कनेक्टिंग सिस्टम है, जो सरकारी महकमों में जिस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए सिंध काबीना ने एक फ़ैसला किया है, जिसमें तो 16 सरकारी महकमों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और ये महकमे ई सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होंगे। मलीर एक्सप्रेस वे एजेंडा में शामिल था, और मलीर एक्सप्रेस वे में बताया ये गया है कि 100 एकड़ एराज़ी जो है रिक्लेम हुई है, यानी वो बच गई है, जिस पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि ये 100 एकड़ कीमती एराज़ी पर किसी भी सूरत में कब्ज़ा होने नहीं दूंगा। और ये कहा गया है रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि इस कीमती ज़मीन को हर सूरत में बचाया जाए। जहाँ तक काबीना के एजेंडा का सवाल है, तो एजेंडा में जो दीगर नुकात हैं उनमें एग्रीकल्चर कारपोरेटिंग फार्मिंग के लिए 52,000 एकड़ से ज़ायद एराज़ी की जो लीज़ है, जो ये मंसूबा ISFIC के थ्रू चल रहा है, उसकी आज के इजलास में मंजूरी देनी है। ये भी एजेंडा में शामिल है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियों की ख़रीदारी है, कोई 20-25 गाड़ियों की ख़रीदारी है, ये भी एजेंडा में शामिल है, जिसमें महकमा रेवेन्यू है, महकमा सेहत है, महकमा तालीम है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, और दीगर सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी। ये भी एजेंडा का हिस्सा है। नेशनल हाईवे के साथ जो N5 का जो रोड है वो भी एजेंडा का हिस्सा है, और दीगर भी काफ़ी नुकात हैं। मुझे नहीं लग रहा कि सारा एजेंडा मुकम्मल हो सकेगा, लेकिन बहरहाल इजलास अभी तक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जारी है। जी, इजलास अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली।
वफाकी वजीर बराए मैरीटाइम ने AI का इस्तेमाल दौर जदीद के लिए अहम करार दे दिया है। कैसर अहमद शेख कहते हैं कि जदीद दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर शोबे में इस्तेमाल किया जा रहा है। AI बिजनेस के शोबा के लिए भी नागजीर बन चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ IBA मेन कैंपस में और वफाकी वज़ीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा, आज आपकी गुफ्तगू में ये बात शामिल थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है बहुत नागुज़ीर है और कॉमर्स फील्ड में तो इंतहाई नागुज़ीर है। मुझे बताइए, आज आपने इन मामलों पर रोशनी डाली है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए ना, हमारे यहाँ ये रियलाइजेशन हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो एक इम्पॉर्टेंट है। हमने लेट किया, इसमें काफ़ी कमी थी। मैं ख़ुद क्योंकि इसी फील्ड से हूँ, मैंने आपसे बताया ना, मैं 38 साल पहले फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि IT की मेन यूनिवर्सिटी है, उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हूँ और मुझे डॉक्टर महबूब हक साहब ने वहाँ पर दिया, मरहूम ने। तो मुझे इसका एम्फसिस है, मुझे इम्पोर्टेंस का पता है कि कितनी कामयाबी हो सकती है। हमने इस तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन बिज़नेस में भी, हमारे मुल्क के रेवेन्यूज़ में भी, हमारे मुल्क के डेवलपमेंट में भी, तो बच्चे अभी इस तरफ जा रहे हैं। पहले तो हम देखें ना, हर कोई BA कर रहा था, इंटर करता था, यानी आर्ट्स में ज़रूर वो आर्ट्स अच्छी तालीम है, लेकिन इस तरफ तवज्जो बहुत कम थी। और अभी मैं देखता हूँ कि IT में सबसे ज़्यादा बच्चे दिलचस्पी ले रहे। मेरे अपने शहर चनियोट में देखें ना, मैं वहाँ से इलेक्ट होता हूँ, यानी पंजाब में सिर्फ लाहौर में फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी और दूसरा कैंपस हमने चनियोट में बनाया और वाइज कैंपस है जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल्स हैं। दूर दूर से मेरे पास वहाँ, तो मैं वहाँ जाता हूँ, उन बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि बिज़नेस के लिए भी ये अभी रिसेंटली देखिए ना, रेवेन्यू हमारा जो है, मैंने जिक्र किया अपनी तकरीर में कि 9% है कौमी आमदनी का, 9,000 अरब। अब हम 5-6 हज़ार अरब बढ़ाना चाहते हैं एक साल में, दिस बिकॉज ऑफ द इनोवेशन, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन IT, बिकॉज ऑफ द दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बच्चे हमारे, अब ये देखिए, मैं फास्ट से सबसे ज़्यादा जो बच्चे जा रहे हैं ना यहाँ से यूरोप और अमेरिका में, उनको जॉब्स मिल रहे हैं और ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस महसूस हो रही है। इम्पोर्टेंस को बहुत महसूस करने की भी ज़रूरत है। अच्छा, आप क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स आपके पास है, तो इंटर्नशिप के मौके फराहम करने के लिए क्या कोई आप इकदाम उठाने जा रहे हैं कि हम IBA जैसे इंस्टीट्यूट के जो तलबा व तालिबात हैं वो मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप कर सकें, कुछ सीख सकें? जी देखिए, मिनिस्ट्री में हमारे यहाँ खुद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो है ना, वो पे जो सी फेयर जाते हैं उसको हम बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास अपने KPT में स्कूल हैं, वहाँ पे कल भी मैं परसों एक हमने तमाम उन स्कूलों को ना, जो बच्चे थे, उनको इनकरेज किया और उनको काफ़ी उनको समझ रहे हैं, उनके तालीम में बेहतरी का। आज मैंने जिक्र किया कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ आ रहा है हमारे यहाँ, खुशखबरी दी, बड़ी खुशखबरी आज दिन। ये पाकिस्तान में पहली बार है कि इतना बड़ा जहाज़ जो कि 19,000 से ज़्यादा कंटेनर लेके आ रहा है पाकिस्तान में। आप में से कोई आना चाहें तो वहाँ बेशक तशरीफ़ लाएँ। वहाँ पे आज 7 बजे हम फंक्शन कर रहे हैं, इस जहाज़ की सेलिब्रेट कर रहे हैं। अना उसका नाम है जहाज़ का, तो 2 दिन ठहरेगा पाकिस्तान में। तो इस किस्म की डेवलपमेंट जो है ना, ये सारी तभी मुमकिन हो सकती हैं जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम फ़ायदा उठाएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम फ़ायदा उठा सकें। वफाकी वज़ीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आलमी सानवी बोर्ड का नकल की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन ने कहा कि इम्तिहानी पर्चों में सिक्योरिटी बार कोड होगा और इंटर के इम्तिहान में 180 सेंटर्स बनाए गए हैं। तफसील आयमा खान से जानेंगे। आयमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, आला सानवी तालीमी बोर्ड ने जो है वो नकल की रोकथाम के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। पहली बार जो है वो इम्तिहानी पर्चों में सिक्योरिटी बार कोड होगा। इंटर के जो है वो इम्तिहानी सेंटर 180 सेंटर बनाए गए हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने जो है वो CG21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि 26 इम्तिहानी मरकज़ जो है वो हसास है। हसास इम्तिहानी मरकज़ के बाहर जो है वो रेंजर्स का अमला भी तैनात रहेगा। शदीद गर्मी की लहर के बायस इम्तिहानात के दौरान तिब्बी अमला भी जो है वो मौजूद रहेगा। तलबा को जो है वो मुफ्त तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इंटर बोर्ड ने तलबा को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का जो है वो अहम फैसला कर लिया है। पहली बार तलबा को जो है वो इम्तिहानी सेंटर में फर्स्ट एड बॉक्स, बुखार, नमकियात की कमी से बचाव के लिए ताकत की अद्वियात भी जो है वो फराहम की जाएंगी। पेन, इसके अलावा जो है वो
पेन किलर, एंटी एलर्जी, ग्लूकोज, विटामिन सी, मिनरल वाटर भी मुफ्त दिया जाएगा। इम्तिहानी मरकज के बाहर एम्बुलेंस भी जो है वो दस्तयाब होगी। सिर्फ इन कॉलेजेस को इम्तिहानी मरकज बना रहे हैं जिनमें सहूलियात जो है वो मौजूद हों। जी बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध ने बिलावल भुट्टो के हिदायत पर पहले मरहले में 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए प्लान तैयार कर लिया है। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि मुफ्त बिजली देने के लिए सिंध हुकूमत सोलर पार्क्स बनाने जा रही है। कराची में 2 पार्क्स बनाए गए और के इलेक्ट्रिक के सिस्टम को बिजली देकर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के बिल एडजस्ट होंगे। यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनको बिजली मुफ्त फराहम करने के लिए सोलराइजेशन और मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं उन पर काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि कुछ ही अरसे में उनको ये सहूलत दी जा सके। और फिर वो इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त तक बिजली है ही नहीं, वहाँ पे भी सोलर पैनल्स के ज़रिए। और एक और चीज़ जो रह गई थी आपसे शेयर करना, वो ये थी कि मिनी ग्रिड जो है सोलर के वो लगा रहे हैं, जो छोटे गांव कह लें या छोटा एक टाउन कह लें कि जिसमें लोग रहते हों, और उनके लिए मिनी ग्रिड का भी इस बजट में हम लोग रख रहे हैं। इनिशियली उसको एक मॉडल के तौर पर रखेंगे, हर डिवीज़न में 1 या 2, फिर इसको बाद में बढ़ाया जाएगा इसका देख के कि इसके क्या फ़वाइद आते हैं। तो ये इस तरह के प्रोग्राम है। 2 लाख सोलर पैनल जो हम दे रहे हैं उसमें ज़ाहिर है सब्सिडी पहले 60-40 थी, अब उसको कम करके 80-20 कर दिया गया है कि जो 20% अफोर्ड करेगा या देगा उसको ये 80% गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। और फिर ये इसमें भी हमने बिस्प का जो एक स्कोर है 20+ को शामिल किया है, और फिर दूसरी स्कीम ला रहे हैं जो 0 से 20 तक का जो बिस्प का स्कोर है कि उसको हम फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो ये वो प्रोग्राम है जो चेयरमैन साहब की तरफ से दिए गए हैं, जिन पर हम अमल कर रहे हैं। सोलर पार्क बना रहे हैं, एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी के उसमें आते हैं, जिसमें कराची में जैसे अभी हालिया दिनों में 2 पार्क जो हैं, एक 150 और एक 120 का, उस पर अभी दीवार भी बन रही है। जो ज़मीन भी हमने अवेलेबल कर दी है, सिंध गवर्नमेंट ने दी है वहाँ पे ज़मीन, और फिर वो जब बनेंगे तो सुरजानी जो ग्रिड स्टेशन है या कोई और हमारी STDC के सपोर्ट से वो हम देंगे के इलेक्ट्रिक को, ताकि जो 100 यूनिट के लोग हैं उनको वो बिजली जो है उनके बिल ख़त्म किए जा सकें। इसी तरह मांझन में एक हमारा सोलर पावर का प्रोजेक्ट है। अब इस बजट में हम दीगर जो एरियाज़ हैं उनमें भी ये पार्क का प्रोजेक्ट रख रहे हैं प्रोविज़न, ताकि हैस्को और सेप्को को भी इसी तर्ज पर कि जो 100 यूनिट के लोग हैं उनको जब हम नेशनल ग्रिड में सोलर पार्क से लेकर वो बिजली देंगे तो वो उनको फ्री कर दे। तो ये प्रोग्राम है, इसमें कुछ टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल 5, डीजल 4 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान 31 मई की रात को होगा। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। फी लीटर पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। 1 लीटर पेट्रोल 273 रुपये 10 पैसे से कम होकर 267 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 13 पैसे कम करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद डीजल 274 रुपये 8 पैसे से कम होकर 269 रुपये 95 पैसे का हो जाएगा। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल 5 रुपये तक सस्ता करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान 31 मई की रात को होगा। अशरफ खान, सिटी 21। और अब जुराइम की दुनिया पर नजर डालेंगे। गुरु मंदिर पर 2 भाइयों के कत्ल और 2 के जख्मी होने का मामला। मकतूलैन के देरीना रंजिश चली आ रही थी। 24 दिसंबर को मोहम्मद एजाज नामी शहरी को कत्ल किया गया था। मकतूल मोहम्मद एजाज के भाई रियाज ने 5 भाइयों को कत्ल का जिम्मेदार करार दिया था। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। गुरु मंदिर पर 2 भाइयों के कत्ल और 2 के जख्मी होने का मामला है। ये मकतूलैन के दरीना रंजिश चली आ रही थी। सलमान सलीम हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद है। सलमान, बताइएगा हमें। देखिए, बिल्कुल गुरु मंदिर पर 2 अफराद के कत्ल और 2 के जख्मी होने का मामला सुबह पेश आया था। जहां और जख्मी होने वाले 4 भाइयों समेत 5 भाइयों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज था।
24 दिसंबर की शब गुरु मंदिर पे ही आइसक्रीम पार्लर मालिक मोहम्मद एजाज को कत्ल और मुलाजिम आदिल को जख्मी करार दिया गया था, जबकि मकतूल मोहम्मद एजाज के भाई रियाज ने पांचों भाइयों को कत्ल का जिम्मेदार करार दिया था। पांचों भाइयों शान, जुबैर, साजिद, वाजिद और उमैर को मुकदमे में नामजद किया गया था, जबकि मुकदमा जो है वो सुल्तान बाजार थाने में दर्ज है। पुलिस ने मुद्दई की निशानदेही पर जिला में मुख्तलीन के घर पर छापा मारा था, जबकि गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी थी। कत्ल और जख्मी होने वाले भाइयों ने बाद अदालत से जो है वो जमानत हासिल कर ली थी। आज मकतूलीन को इसी मुकदमे में पेशी पर जाना था, जबकि कत्ल होने वाले अफराद की सुल्तान बाजार अलबिला सिग्नल पर पेशावरी आइसक्रीम के नाम से दुकान भी है। जी बहुत शुक्रिया सलमान सलीम। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यहाँ बात करेंगे बहादुरी का मुजाहरा करने पर तारीफी इसनाद तकसीम। पुलिस मुकाबलों में आला कारकर्दगी पर इनाम भी दिया गया। DIG ने पुलिस मुलाजमीन में असनाद और इनाम तकसीम किए। मंगल को पुलिस का डिकेटों से मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग के बाद मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं नुमाइंदा सलमान सलीम से। सलमान आगाह कीजिएगा हमें। बहुत शुक्रिया। देखिए, मददगार 15 यूनिट फैसिलिटी टीम को डाकुओं से बहादुरी से मुकाबला करने पर शाबाशी दी गई। DIG इमरान याकूब ने 15 फैसल की टीम में इसनाद भी तकसीम किए। मंगल को मददगार 15 फैसल पुलिस ने डाकुओं से मुबैना मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजमान गिरफ्तार हुए, जबकि मुलजमान लूटमार कर रहे थे, जिसकी इतला पर 15 जो है वो मौके के पर पहुंची। इतला मिलने पर टीम ने फौरी तौर पर जो है वो मुतासर शहरी के साथ मुलजमान का ताकुब किया। गिरफ्तार मुलजमान से असला, मोटरसाइकिल और छीना हुआ सामान बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान को मुतालिका थाने मुंतकिल कर दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका सलमान सलीम। थाना साहिल पुलिस की कार्रवाई की बात करेंगे। असलहे की नुमाइश में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी आपको यहाँ पर अपडेट करते चले। थाना साहिल पुलिस की कार्रवाई सामने आई, जिसमें असलहे की नुमाइश में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा आगाह कीजिएगा हमें पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में। जिला साउथ में असले की नुमाइश करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। थाना साहिल पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। असले की नुमाइश में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त कासिद अली वल्द निसार अहमद और सैयद मोहम्मद वल्द मोहम्मद खान के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान से 2 अदद 223 राइफल, 4 अदद मैगजीन और 34 राउंड बरामद हुए हैं। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। यहाँ बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट ने 14 साल लड़की समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ जमाली से जानेंगे। मुमताज़ हमें बताइएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 14 साल बच्ची समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत की है। और दौरान समाअत 14 साल अफशा जो कि मुबैना तौर पर अगवा हुई हैं, उनके लवाकिन अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि उनकी बच्ची जो है वो ताहाल बाजियाब नहीं हो सकी है। ये 3 साल कबल हैदरी मार्केट से लापता हुई थी। तफ्तीशी अफसर से अदालत ने इस्तफसार किया कि बच्ची की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, जिसमें तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुतअद्दिद GITs के जो है वो इजलास मुनक्कद हो चुके हैं। तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना है कि तहकीकात से मालूम हुआ कि लड़की कुछ रोज़ जो है सुरजानी टाउन में रही थी। बाद में वहाँ पर एक रिक्शे वाला जो है उनको वहाँ से लेकर गया था, जबकि रिक्शे वाले ने वहाँ की खातून को बताया कि उन्होंने इस लड़की से शादी की है। लिहाजा अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि बच्ची जहाँ भी है उनको बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। इसी तरह जो 2018 से लापता उमर सिद्दीकी अहले खाना भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 2018 से 2024 तक उमर सिद्दीकी की बाजियाबी से मुतल्लिक़ कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आई है। पुलिस जो है वो घर पर आती है, बच्चों और ख़वातीन को हिरासा करती है, जबकि इन 6 सालों में उन्होंने अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटे हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि उमर सिद्दीकी जो हैं उनसे उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक़ क्या पेशरफ़्त सामने आई है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा
کہ صوبائی ٹاسک فورس اور GIT کے اجلاس منعقد ہو چکے ہیں اور شہری کی بازیابی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسران سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ دیگر لاپتہ افراد کے بازیابی سے متعلق بھی عدالت نے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ان درخواستوں کی جو مزید سماعت ہے 19 اگست تک ملتوی کر دی ہے. زراعت کی دنیا سے خبر شامل کریں گے. کپاس کی چنائی اور نئے کاٹن جننگ سیزن کا آغاز. مختلف شہروں میں 7 جننگ فیکٹریاں فعال. کپاس کی نئی فصل کاٹن کی پیداواری بھی شروع ہو گئی ہے. کاٹن جنرز فورم چیئرمین احسان الحق کا کہنا ہے کہ فی من روئی 1500 روپے اضافے سے 22,000 روپے فی من پر پہنچ گئی ہے. اشرف خان تفصیلات بتائیے گا ہمیں. ملکی ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک اچھی خبر آئی کہ پاکستان میں کپاس کی نئی فصل کی چنائی اور نئے کاٹن جننگ سیزن کا آغاز ہو گیا ہے. اور کاٹن جنرل فورم کے جو چیئرمین احسان الحق نے یہ بتایا کہ کپاس کی نئی فصل سے تیار نئی روئی کی پیداوار بھی شروع ہو گئی ہے اور روئی اور پٹی کی قیمتوں میں بھی زبردست تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. کاٹن جنرل کے مطابق فی من روئی کی قیمت میں 1500 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور فی من روئی کی قیمت بڑھ کر 22,000 روپے فی من پر جا پہنچی ہے. ساتھ ہی یہاں پٹی کی قیمت بھی 1,000 روپے اضافے کے ساتھ جو ہے 10,600 پر فی 40 کلو گرام پہ پہنچ گئی. اور کہا ہے کہ جو یہاں پہ ڈیمانڈ ہے جیسے کہ جو فصل اچھی کی امید ہے جس سے ٹیکسٹائل ملز کو بہت فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ اشرف خان. اب بات کر لیں گے شہر میں ہیٹ ویو کی صورتحال کے بارے میں جو کہ ابھی بھی برقرار ہے. موسم شدید گرم اور مرطوب ہے. گزشتہ روز سال کا گرم ترین دن ریکارڈ ہوا ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ گزشتہ روز درجہ حرارت 41.5 ڈگری تک رہا. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. دیکھیں جو کراچی میں ہیٹ ویو کنڈیشن پیدا ہوئی ہے گزشتہ کل سے، کل 41.5 ٹمپریچر گیا تھا اور آج بھی 41 تک جانے کا امکان ہے. اس وقت 11 بجے 36 ہو چکا ہے اور لیکن ہیومیڈیٹی چونکہ بہت زیادہ ہے 57% ہے اس وقت بھی اور ساؤتھ ویسٹرلی ونڈ چل رہی ہے، جنوب مغرب سے ہوائیں چل رہی ہیں. گو کہ ہوا کی سپیڈ بہت کم ہے لیکن اس کے باعث بہت زیادہ شوٹ کرنے کا امکان نہیں ہے، یعنی 42-43 تک کا جو خدشہ تھا اس تک شاید نہ جائے، 41 تک ہی زیادہ امکان ہے رہنے کا. اور اسی اگلے 2 دن مزید اسی رینج میں رہے گا ٹمپریچر، کل 40 سے 42 اور پرسوں پھر 39 to 41. تو 3 دن گرمی کے ہیں کراچی میں بھی. باقی سندھ میں تو ہیٹ ویو بدستور اپنے اس پر ہے، پیک پر ہے. اپر سندھ، بستی اور بالائی سندھ یعنی نواب شاہ سے اوپر جتنے علاقے ہیں وہاں تو 50 سے اوپر ہی ٹمپریچر چل رہے ہیں. اس میں سکھر، نواب شاہ، روڑی، دادو، جیکوباد، لاڑکانہ اور موجڈارو اسپیشلی. اور یہ جو ہیٹ ویو کراچی تک پھیلی ہے تو اس کے اثرات حیدرآباد پہ بھی گزشتہ دن بہت زیادہ ہوئے ہیں. وہاں پہ 48 تک ٹمپریچر پہنچ گیا. پھر نیچے بدین اور ٹھٹھا وغیرہ میں بھی 45-46 تک جا سکتا ہے اگلے 2 دنوں میں، آج بھی اور کل بھی. اور پھر 2 جون سے کراچی میں موسم بہتر ہو جائے گا، ہلکے پھلکے بادل بھی آنے لگیں گے اور ٹیمپریچر 34 سے 36 کی رینج میں ٹیمپریچر رہے گا پھر اگلے چند دن تک. البتہ سندھ میں گرمی برقرار رہے گی. ہاں یہ ہے کہ 2 سے 3 سے 4 دن جو 31 مئی سے لے کے 3 جون تک یہ جو 4 دن ہوں گے اس میں قدرے کم ہوں گے، ٹیمپریچر 2 سے 3 ڈگری کم ہو سکتے ہیں. یعنی وہ جو 50-52 کی رینج میں چل رہا تھا ٹرینڈ وہ کم ہو کر 46-48 کی رینج میں رہے گا. لیکن 4 جون کے بعد دوبارہ سے اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ مڈ جون تک اسی طرح سے چلے گی گرمی. اور دوسری جانب رواں سال مانسون کی معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے مانسون کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی ہے. جون کے وسط سے مانسون کی داخل ہونے کا امکان ہے. جی ہاں، آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں اور مزید تفصیلات بھی اب جان لیتے ہیں. آئمہ خان سے جانیں گے. آئمہ بتائیے گا ہمیں. جی بالکل، دیکھیں محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ حالیہ گرمی کی لہر کے حوالے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مونسون کی بارشوں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی ایڈوائزری جاری کر دی ہے. محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ شہریوں کو خوشخبری سنا دی ہے. محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ مونسون میں جو ہے وہ اس رواں سال جو ہے وہ معمول سے زائد بارشیں متوقع ہیں. مونسون کے سیزن میں جو ہے وہ کراچی میں بھی معمول سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں. ملک بھر میں مونسون کے دوران معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے، جبکہ جنوبی سندھ میں سب سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. بلوچستان میں بھی معمول سے زائد بارشیں جو ہے وہ متوقع ہیں. مونسون سیزن کے دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ زائد بارشوں کا امکان ہے. ملک کے اکثر مقامات پر جون کے آغاز میں دن میں درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے زائد بھی ہوگا. بارشوں کے بعد درجہ حرارت میں جو ہے وہ معمول پر آ جائیں گے.
मानसून के दौरान आंधी और तेज हवाएं भी चलेंगी। शहरों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान है। जायद बारिशों के सबब दरियाओं में सैलाब भी मुतवक्के है, जबकि महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को जो है वो एहतियाती तदाबीर समेत तेज इंतजाम की भी जो है वो हिदायत करती है। जी शुक्रिया आयमा खान आपका तफसीलात के लिए। काटी के दफ्तर के बाहर नाला ओवरफ्लो होने लगा है। नाले के तरफ दीवार न होने से गंदा पानी सड़क पर आ गया। सीवरेज का पानी फैक्ट्री के बाहर जमा होने के बायस मुलाजमीन को भी मुश्किलात का सामना है। अहवाल जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पे मौजूद हूँ, बुरुक्स चौरंगी की जानिब। और यहाँ पर जो साइड में बने हुए नाले हैं जिनमें पानी, गंदा पानी जो है वो होता है, अब वो ओवरफ्लो होने लगे हैं। और साथ ही साथ जो है उनकी बाउंड्रीज ना होने की वजह से अब वो पानी जो है वो सड़क पे आने लगा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि ये वो नाले हैं जो ओवरफ्लो हो चुके हैं, इनकी सफाई ना की जाने की वजह से, और साथ ही साथ इनकी बाउंड्रीज नहीं है। तो ये जो पानी है अब वो निकल के जो है वो रोड पर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक की वजह से जो है वो रोड तंग हो गया है, यानी आधा रोड जो है वो गंदे पानी में घिरने लगा है। जबकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। काटी के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कोरंगी ट्रेड एंड एसोसिएशन का जो दफ्तर है, यहाँ पे जितने भी बाइक्स खड़ी हैं उनको मुश्किलात का सामना है। जो दफ्तर के अंदर जाने वाले मुलाजमीन हैं उनको मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानगी इसी वजह से यूँ सुस्त हो सकती है, यूँ मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि आधी सड़क जो है वो गंदे पानी से घेरी जा रही है। और ये जो हम पानी देख रहे हैं गंदा, ये ओवरफ्लो होकर जो है वो बढ़ता जा रहा है रोड पर। बदबू भी यहाँ पर है, ताफुन जो है वो फैल रहा है। खड़ा होना मेरा इस वक्त जो है वो यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। लिहाजा हम देख रहे हैं कोरंगी में बहुत से ऐसे नाले हैं जो ओवरफ्लो हो चुके हैं और इस तरह जो है वो सड़कों को गंदा करते हैं। तो लिहाजा यहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो इस तरह के नालों की सफाई भी की जाए और साथ ही साथ जो है वो इनकी बाउंड्रीज भी बनाई जाए, ताकि जो इनका पानी है वो गंदा बाहर जो सड़क पर आकर जो है वो सड़क को ख़राब ना कर सके। जी